Hello student, I am R.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I have brought a class of the subject mathematics. The chapter is a pair of linear equations in two variables for the students of class 10th. Actually, this chapter already this chapter was given in class 9th. Linear equation, the name of that chapter was linear equation in two variables. And in this class 10th, the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. The pair new word has come. In class 9th already you have understood the extended form of the linear equation. Linear means its degree is 1. And in that linear there are two variables involved. So the name of this is linear equation in two variables. So first thing is what is the extended form of linear equation in two variables. The extended form, general form of the linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not equal to 0, but c may be equal to 0. This a is the coefficient of x, and when a will be 0, then x will be eliminated, then that will be one variable. Okay, the reason is that if b will be 0, then y will be eliminated, then only c will be left there. So to maintain these two variables x and y, a and b must not be equal to 0, but c may be 0. Okay. For example, if I have written 2x plus 3y plus 9 is equal to 0, in extended form ax plus by plus c is equal to 0, a is the coefficient of x and b is the coefficient of y and c is the constant term. Suppose if I have written 2x plus 3y plus 9 is equal to 0, then here the coefficient of x is 2, so 2 is a. Okay. Coefficient of y is 3, so b is 3, and this is the constant term, that is c. So now 2x plus 3y plus 9 is only linear equation in two variables, but in class 10 the name of the chapter is pair of linear equations in two variables. Means at a time there must be simultaneous two equations, minimum two equations, and two equations at a time are there. It means pair of equations, linear equations are there. So just see, 2x plus 3y plus 9 is equal to 0. This is the first equation. And 4x plus 6y is equal to 18. This is the second equation. So I have written simultaneous pair of linear equations. If two equations are there, then the coefficient of x from first equation will be not a1. Okay. From equation first, the coefficient of y will be 1. 1 refer from first equation. And this one is the c1. Okay. Similarly, that will be from, this is the second equation. So this one is the a2, this is b2, this is c2. So now the question, first question is objective question. What is the extended form of linear equation of two variables when they are given in pair, or when they are given in pair of linear equation in two variables? Then their extended form are a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 all are real numbers. a1, b1, a2, b2 must not be equal to 0. Okay, clear? Now, suppose from these equations, when anyone will ask you, what is 2? Don't say a. This is a1. This is b1. And actually plus c1 is equal to 0, but in this equation this constant term is given in right side. If right side is, any constant term is given in right side, then just simply change its sign, because when it will move, transpose to left side, then that will be minus 9. So it can be said
C1 is equal to not 9. C1 is equal to minus 9. Similarly, A2 4, B2 6 and C2 is equal to minus 18. Okay, any problem? Now, after knowing A1, B1, C1, A2, B2 and C2, when some introduction, this is the first exercise of NCERT, exercise 3.1. Actually, this is the introduction class of this chapter. And in this introduction class, today what we have to understand, when any situation in language is given, and we have to convert the given situations, or we have to represent the given situations algebraically and geometrically. Now you will say, what is algebraically and what is geometrically? The algebraically means the given, when we convert the given situations in this form, pair of equations form, then that is representation of algebraically. And after this representation into the form of algebraically, when that equations are just plotted on graph, that is the geometrical relationship. Okay? So this way, when situations are given, first we have to convert them into equations. That will be algebraically representation. And after representation into the algebraically, once again we have to convert them into graph, that will be geometrical relationship. So first, before knowing and conversing into algebraically or geometrically, first try to know. See, just I have drawn these three figures. Two straight lines are intersecting at a point. So this one is the intersecting lines. And actually there are two lines. These two lines are, but these two lines coincide each other. So this one is the coincident lines. Actually there are also two lines, but they meet with each other, straight, coincide each other. So these two lines are coincident lines, and there two lines are parallel lines. Okay. So when we convert any situations into algebraically form and represent on graph, then out of these three cases, any one case may be obtained. Either intersecting lines, either coincident lines or parallel lines. And when intersecting lines and coincident lines are obtained, then it is also known as consistent. Now one more question is, what is consistent? The pair of linear equations into two variables are said to be consistent if they have at least one solution. If they intersect each other at a point, it means that pair of equations has exactly one solution. And if they coincide each other, it means they have infinitely many solutions. They have many solutions. And when they are parallel to each other, it means they have no any solutions. Okay? So let us begin. Just see one question of exercise 3.1 I am taking, and the question is first questions, and in that question it is given, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. So simply Aftab tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old you. मतलब 7 साल पहले आफ्ताब अपने बेटी के एज का 7 गुना था. तो जब भी आप क्वेश्चंस बनाओगे तो ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन जहां से शुरू है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको बहुत सुविधा होगा अगर आप ऐसा करोगे. जनरली जब आप बुक का सोल्यूशन देखोगे तो यहीं से स्टार्ट करता है, प्रेजेंट एज से. हम आगे पीछे में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बच्चे गलत कर बैठते, इसलिए आप एक सीरीज में आते चलो. आपको कभी पीछे नहीं जाना है, आगे आते हो. और हम आगे कहां से शुरू करते, क्योंकि कहानी क्या दिया 7 साल पहले
कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी का 7 गुना था। तो 2 पर्सन है, देयर आर 2 पर्सन, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, एंड आई हैव कंसिडर्ड द एज ऑफ आफ्ताब एज y years and daughter's age as x years. And x years and y years are the ages of daughter and Aftab respectively, and these ages had been considered of 7 years ago. Then, so y is the age of Aftab and x is the age of daughter, and 7 years ago Aftab age is 7 times of his daughter. Therefore, this y is equal to 7x. This y is equal to 7x. And now, this y when just transpose this side, then we get 7x minus y is equal to 0. And this is the first equation. Okay? If 7 years ago, if the age of the daughter, if the age of daughter was x, then her present age will be x plus 7. If 7 years ago, if the age of Aftab is y, then his age, present age will be y plus 7. So this is the present age of daughter and Aftab, and daughter's present age is x plus 7, and Aftab's present age is y plus 7. And after that it is given, if from 3 years now, मतलब 3 साल के बाद, I will be 3 times of your age. After 3 years, once again, daughter's age will be present age plus 3, that is x plus 10. Similarly, Aftab's age will be 3 plus present age, that is y plus 10. And after 3 years, Aftab will be 3 times of his daughter. So this y plus 10 is equal to 3 into x plus 10, and this y plus 10 is equal to 3 into x, that is 3x plus 30. This is 3x minus y, and 10 minus 30, that is minus 20. So 3x minus y is equal to minus 20. This is the second equation. And by given this equation, just I have converted 2 equations. First equation is 7x minus y is equal to 0. And 3x minus y is equal to minus 20. So this is the algebraically representation. And now question is, represent it now with graphically. So now you try to understand how we can represent this algebraic information into graphically. So just see. तो अब हमने क्या किया, अभी ये इक्वेशन बना लिया। अब इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, ये 3 इक्वेशन, मतलब आपने जो है ना ये 3 कंडीशंस बनाया था 7 ईयर्स अगो, उससे फिर प्रेजेंट एज में आए, फिर 3 साल के बाद में। तो ये तीनों कंडीशन से आपके पास ये 2 इक्वेशन बने। तो अब हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन का हमें टेबल बनाना है, जहां पर हमें उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट जैसे हमने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखा है, तो इससे हम y का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया 7x, और हम यहाँ x का वैल्यू 0 लिए, सॉल्व किए तो y भी 0 आ गया, x का वैल्यू 1 लिए तो फिर y भी 7 आ गया, x का वैल्यू -1 आ गया तो y भी -7 आ गया। तो इस तरह से मेरे पास x और y निकल गया। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जानते हैं, 9th में भी बनाए हैं कि कम से कम 3 वैल्यू आपको निकालने हैं। 3 वैल्यू का कारण मालूम होगा आपको, क्योंकि 2 से भी बनता है, लेकिन 2 में अगर आप गलती भी करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्लूज ज्योमेट्री में हम 9th में पढ़े हैं कि किसी भी प्लेन में जब 2 पॉइंट लोगे तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे ही, और आप गलती भी किए रहोगे तो पता नहीं चलेगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा या किसी भी तरह की गलती है उसको, या प्लॉटिंग में गलती है, तो जब तीनों पॉइंट को आप प्लॉट करोगे तो उससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो इट मीन 2 केस हो सकता है, 2 रीजन हो सकती है, या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है या प्लॉटिंग है। तो पहले हम उसको करेक्ट करेंगे। तो जब हम इस तीनों पॉइंट को प्लॉट करेंगे, मान लीजिए तीनों पॉइंट को हमने प्लॉट किया, ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको ग्राफ या बोर्ड पर, क्योंकि आप प्लॉट तो करना जानते ही हो। अब ये सेकेंड इक्वेशन दिया था 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -20। अब यहां से भी हमने x का वैल्यू निकाल लिया, y माइनस 20/3। अब यहाँ हम x और y लिख दिए, हमने y का वैल्यू कितना लिया -1, तो फिर x -7 मिल गया, y का वैल्यू -4 लिए तो x हमको -8 मिल गया,
y का वैल्यू -7 लिए, तो फिर ये हमको x जो है वो -9 मिल गया। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन से 3 वैल्यू निकाल लिए। अब ये तीनों वैल्यू जो हमने निकाल लिया, तो पहला को तो मान लीजिए हमने प्लॉट कर दिया। अब दूसरे को जब आप प्लॉट करोगे, तो प्लॉट करने के बाद मान लीजिए ये इस तरह से ये लाइन बना। तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा था कि जब आप उसको ग्राफ पर बनाओगे तो जनरली 3 तरह के केस होते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आते हैं, या कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएगा आपके पास, या पैरेलल लाइन बनेगा। तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जब आप इसको बनाएंगे तो इसके कई मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अभी जो ये क्वेश्चन था, सिचुएशंस क्या था, इसमें एज प्रॉब्लम था। तो जब मान लीजिए ये एक फादर और एक डॉटर की कहानी है, इसमें सिचुएशंस एज से रिलेटेड है, तो नो डाउट फादर और डॉटर दोनों का कोई ना कोई एज होगा, एक एज होगा। जब एक फादर एक डॉटर की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, पैरेलल नहीं बनेगा। क्लियर? अब चलते हैं, अगर ऐसा बन जाए तो ये भी अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी के कई एज हो सकते हैं। वो आदमी 5 साल का भी है, 20 साल का भी, 25 साल का भी है, 50 साल का भी। क्या एक हो सकता है ऐसा कभी कि एट ए टाइम एक आदमी किसी भी एज को रिफर करेगा? नहीं, कोई एक एज को रिफर करेगा। तो अभी जो कंडीशन था, और इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। जब आप इसको मेजर करके ग्राफ पर बनाएंगे, तो आपका जो ये आएगा इंटरसेक्शन जो मिलेगा, वो 5 और 35 पर मिल जाएगा। कितना? 5 और 35। अब आप कहोगे कि जब हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं हटेगा, क्योंकि हमें भी बोर्ड पर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। बोर्ड पर तो मेजर करके भी नहीं बनाते हैं, आप तो जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसीलिए आपको समझना। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, सोल्यूशन से कुछ नहीं। इसको मैं पहले ठीक से बना लेता तो आप सोल्यूशन से नहीं, आप समझने की कोशिश करोगे कैसे क्वेश्चन बनाना, सिचुएशंस को आप कैसे एल्जेब्रिकली कन्वर्ट करोगे, कैसे ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट करोगे। और ये जब 5 और 35 पर, तो 35 तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन, तो कि आपका ग्राफ छोटा पड़ रहा है, तो आप इसके स्केल कर दो। 1 2 3 4 5 नहीं लिखो, आप 2 4 6 भी लिख सकते हो। जब 2 4 लिखे, तो 2 4 के बीच का अंडर रूट 3 हो गया। तो इस तरह से बड़े नंबर को भी आप एडजस्ट कर लोगे, स्केल कर लेना। नहीं, जहां छोटा नंबर आ रहा है वहां आपको रेयर केस में आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। अब जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसमें स्केलिंग करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको स्केलिंग करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में आपको छोटे नंबर से बन जाएगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आप एक क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से हम 5 और 35 हमको मिल जाएगा। जब हमको ये सोल्यूशन, मान लीजिए ये सपोज कीजिए कि इसका ये 5 और 35 है, तो जब हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो उस कोऑर्डिनेट में एक ऑर्डर पेयर होता है। ऑर्डर पेयर क्या होता है कि पहला जो होता है वो x होता है, बाद का जो है y होता है। इट मीन्स अगर ये 5 और 35 पर ये पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 35 है। और बस इस क्वेश्चन में मान लीजिए बस रिप्रेजेंट करना था एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। और ये अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाए कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो वहां भी एक प्रॉब्लम होता है कि हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम इतने जल्दी में होते हैं कि मेरी जवाबदेही बस इतनी होती है कि बस हम एक्स और वाई निकाल दिए। अब क्या सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन बन गया। आप अपनी कंसिडरेशन को भूल जाते हो। तो आपने क्या कंसिडर किया था कि एक्स और वाई 7 साल पहले का एज था, जबकि क्वेश्चन का रहा था प्रेजेंट एज निकालना है। तो आप ये ध्यान दोगे कि डॉटर का प्रेजेंट एज आपके पास x+7 हो गया, और अवतार का प्रेजेंट एज y+7 हो गया। तो x का वैल्यू अगर 5 आया, तो डॉटर का एज 5+7 यानी 12 ईयर्स आंसर होगा, और आफ्ताब का एज 35+7 यानी 42 ईयर्स होगा। इसीलिए आपका जो क्वेश्चन था वो प्रेजेंट एज का था। तो आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे। आपकी जवाबदेही वही नहीं खत्म हो जाती जहां आप बस सिर्फ जो है ना एक्स और वाई निकाल ली और आप इस तरह से मतलब बना के वहां से निकल जाओगे, तो आपको फिर उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जैसे जैसे हमने आपको बताया, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि 9th में भी आपने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया था। ड्राफ्ट करने के बाद अब अंतर क्या है
कि 9th में सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन होते थे, एक ही लाइन होता था। अब 2 इक्वेशन है, 2 टेबल बनेंगे, दोनों टेबल के पॉइंट को प्लॉट करोगे, तो जब दोनों लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आप सिचुएशन तो समझ ही गए, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, या कोइंसिडेंट लाइन्स होगा, या पैरेलल लाइन्स होगा। पैरेलल का मतलब हो जाता है कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन है, कोइंसिडेंट लाइन्स का मतलब मेनी सोल्यूशन है। तो सिचुएशंस को भी देखना है कि किसी का एज है, किसी भी चीज का कॉस्ट है, तो वो मेनी नहीं हो सकता, मेनी सोल्यूशन में नहीं हो सकता, उसका कोई एक सोल्यूशन होगा। लेकिन टेम्परेचर है तो मेनी हो सकता है, डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट टेम्परेचर होता है, तो वो आपको सिचुएशन से आपको रिफर करेगा। कि अब जैसे आएगा कि अगर मान लीजिए हम डिफरेंट प्लेस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका कोई सिचुएशन मेरे पास दिए हुए हैं और उसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो निश्चित है कि क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर वहां बन गया, इट मीन्स आपने गलती कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर एक प्लेस का टेम्परेचर एक ही होता है, जो कि ऐसा नहीं होता। उस केस में कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइंस बनेगा। एज का आएगा, कॉस्ट का आएगा, तो उसका फिर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। अब आप कहेंगे पैरेलल लाइंस कहां बनेगा, जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता हो, उसके लिए हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन होता है। और ये इंटरसेक्टिंग लाइन का, ये कोइंसिडेंट लाइन जो आता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का डेफिनेशन हम क्या देंगे, जिसका कम से कम एक सोल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी यहाँ जब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो वहां हम कंसिस्टेंट को सुविधा के लिए हम ये कोइंसिडेंट नहीं लेते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सोल्यूशन को ही लेते हैं। क्योंकि मेनी में तो चूंकि कंसिस्टेंट का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो इजीली हमको एटलीस्ट सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिल जाता है, इसीलिए हम यूनिक सोल्यूशन को कंसिस्टेंट में मानते हैं। बट आपको ये नहीं समझना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं होता, कंसिस्टेंट में कोइंसिडेंट लाइंस भी आते हैं। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो। तो हम आशा करते हैं कि अब आप इसको बनाएंगे, फिर हम अगले क्लास में फिर अगले एक्सरसाइज का फिर अब हम ग्राफिकली, क्योंकि जब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, ग्राफिकली मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, फिर उसके कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, फिर उससे फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आएंगे। थोड़ा सा ये 2-3 क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। तो आप पहले इसको बनाइए, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।